question answer. But before that, beta, yes, any question? Okay, fine. So first question is, don't worry right now if you are not able to see this one. It will take a little bit time. Okay. Explain why some fibers are called synthetic. Now this is important. Okay. Explain why some of the fibers are synthetic. Okay. Who will tell me this answer? Yes. Okay. First of all, what's the meaning of synthetic fiber? And that the fibers that are not natural. Correct. Not natural means they are not the resources. It's what man-made, or it will be factory made, right? It will not be plant-based or animal-based product. Okay. So that is synthetic fiber means with the help of Ma'am, can you zoom the PDF? Yes. Okay. Now, are you able to see this one, beta? Yes, ma'am. Synthetic means specifically which word should be there? Synthetic means we are going to use some of the chemicals, right? Chemicals mixed with the natural resources, or it can be only on purely chemicals. Okay, so that will be known as what? Synthetic fibers. Now they have mentioned here explain. Explanation will be always in detail, right? So you need to write down, you can give one example of synthetic fiber, completely synthetic. Okay, it should not be the mixture of synthetic, this artificial or synthetic fiber plus natural. It should be purely chemical based. Okay, you can give one example and explain why it's synthetic fiber. Suppose you can say that you know that we have studied rayon, we have studied nylon, out of which one is purely based? It's synthetic fiber. You are having your textbook better, right? Now you are going to give me the answer. I am going to correct it and I'll give you that what exactly you are going to write down in this question, right? You are having your textbook, find it out right now. Which synthetic fiber is purely made up of the chemicals and not the other natural resources, or the materials? Nylon. Nylon. Nylon is made up of what? Yes, Veera. Nylon is made up of what? All of you are having your textbook. Plastic. Plastic. Plastic is the fiber, Veera. Plastic is not the fiber. Right? Plastic is not fiber. Plastic is completely different part. Right now we are discussing fiber. Ma'am, it was made from coal, water, and Correct. air. Correct. This is the example of what? Nylon, rayon, or what? Nylon. Nylon. So if nylon is made up of coal, water, okay. So these are the things that we can say. First of all, you need to identify the difference, right? Which one is the natural fiber and which one is the synthetic fiber. Once you identify, you need to define it. That why it's known as synthetic fiber, right? Now you know that if it's coming from the natural resources, it will be your natural fiber. Second definition, synthetic fiber means it's completely made up of the chemicals, okay? And it's not coming from that any of the resources, natural resources. And then you can give the example. Fine? Clear? Now, rayon is different from synthetic fibers because why rayon is different from synthetic fibers? Because it has, okay, we have discussed that there is artificial silk and artificial wool available. है ना? Artificial यानी जो natural नहीं है. Fine? Out of which rayon is what? Artificial silk. Artificial silk. Okay. And which one is artificial wool? Which one is artificial wool? Acrylic. Rayon is different from the synthetic fiber because it has silk-like appearance, or it is obtained from the wood pulp, or it's the fiber can be woven like those of the natural fibers. What is the correct answer? It is obtained. What is rayon, beta? Yes, what is rayon first of all? Ma'am, it is obtained from wood pulp. It is obtained from wood pulp. That's why it's
different from the synthetic fiber? You are having your textbook, better, right? All of you, you are having your textbook? Yes or no? If no, then let me know. I will share it here. You are going to find it out. You are going to search it. Okay. See, I already know. Fine. I completed my degree. You are going to search the answers, है ना? मैं यहाँ पे search करके दूंगी. So you are not going to go through with that chapter. Fine. हमने study किया पूरा rayon, nylon, plastic starter study किया. Okay. Now it's your turn. You are going to search it from your textbook and you are going to give me that answer. I will confirm it, yes, whether it's correct or wrong. Fine. चलो कितने लोगों के पास textbook है? Raise your hand. Textbook. Only Devik. Hate. Then. बेटा बाकी सबके पास textbook नहीं है? पंक्ति. Okay. Rudra. Jai. Shaurya. What about the other students? You are not having your textbooks? Yes. Vrishti. अच्छा जिसके पास है वो तो आंसर बता सकते हैं, right? Just search it and let me know. आप जब तक आंसर नहीं करोगे, today I'm not going to give you the direct answer, है ना? मैम एक बार रिपीट करो ना क्वेश्चन. Yes, question is that आपके पास textbook है, so you know the question, right? Rayon is different from synthetic fibers because rayon बाकी सारे fibers से बाकी सारे synthetic fibers से अलग है. क्यों? Yes बेटा. Ma'am, rayon is different from a synthetic fiber because it has some similar properties of silk. Okay. अगर silk के साथ देखो यहाँ पे clearly mention है कि rayon different है किससे? तो खाली फाइबर से नहीं, मतलब नेचुरल फाइबर ये सिंथेटिक नहीं, यहाँ पे मेंशन किया है सिंथेटिक फाइबर से क्यों अलग है. फाइन. तो सिंथेटिक फाइबर की पहले तो डेफिनेशन एंड रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से पॉइंट मैच करेंगे तो वो सिंथेटिक फाइबर होगा. सबसे पहले तो इट शुड नॉट बी फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कंप्लीटली वो नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं बना है. राइट. तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, इट्स फाइबर कैन ऑल्सो बी वूवन लाइक दोस ऑफ नेचुरल फाइबर्स. Okay, so is that possible for in case of rayon? No, ma'am. So which one is the correct answer? Silk-like appearance. Rayon is different from synthetic fibers because it is obtained from wood pulp. Correct. Okay. Second answer, you are going to give that. See, those who are sitting here, beta, make sure कि अगर आपको समझ में नहीं आया है ना तो आप 5 बार पूछोगे, 10 बार पूछोगे. फाइन. बट एक बार एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होने के बाद once you get a whole idea about this chapter, at the time at least you must be able to see. I'm not telling you that you cannot use your textbook, right? You just have to find it out which one is the correct answer. If you are not having your textbook right now, I'm sharing this. First of all, here we can see what is this rayon. Now you know that what is rayon. Okay, you know that pure form of silk is not easily available and the cost is high. So we have find out one solution. What is the solution? Artificial silk. Right? Now what is artificial silk? Rayon. With the help of chemical treatment of wood pulp. एक आंसर यहाँ पे दिख रहा है बेटा, हाईलाइट करो. जितने भी लोग हैं सब हाईलाइट कर लेना प्लीज. Then you are not going to ask, okay, that why. This one is what your artificial silk rayon. Although rayon is obtained from the natural resources, wood pulp, but we are going to treat this wood pulp with the chemicals, right? So it's man-made fiber and it's cheaper than. So now here we can see we are having 3 answers, right? What is that? One of the answer that we can match with our option, right? This is the wood pulp. Now it can be dyed and rayon is mixed with the cotton, that is not in use. ये कोई भी आंसर आपका मैच नहीं कर रहा है आपके MCQs के साथ, right? So हमारा एक आंसर जो मैच कर रहा है, that one, what is that? It's B. It is wood It is made up of wood pulp. Right? Wood pulp. अब completely made up of wood pulp नहीं है. It's chemically treated and then we are going to made it as a artificial silk, right?
क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे ऐसे ही सर्च करके, यू नीड टू फाइंड इट आउट। तो हमारे पास 3 ऑप्शन थे। इट हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस, दैट इज करेक्ट। उसका अपीयरेंस सिल्क लाइक ही है। ओके, अपीयरेंस नहीं, वी कैन से दैट द टच, राइट? सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दैट। इट्स फाइबर कैन आल्सो बी वोवन लाइक नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स की तरह वो नहीं होंगे। ये कोई कैरेक्टरिस्टिक हमारे बुक में नहीं दी है, राइट? We are already given, we already provided one information, that is it is obtained. Obtained बोला है सिर्फ, right? It can be any other thing, यानी food pulp के अलावा और भी चीजें हो सकती है, right? So we are going to consider this answer. Now fill in the blanks. Synthetic fibers are also called. Can I say? Yes. Ma'am, synthetic fibers are also called synthetic or man-made fibers. Perfect. Okay, synthetic or man-made. Ma'am, or artificial. Yes, also. artificial. You can use the word artificial because synthetic word is already there. Synthetic fibers are synthesized from the raw material called Petrochemicals. Ma'am, wood pulp. Ma'am, petrochemicals. okay. See, synthetic fibers are synthesized from the raw material. इसमें petrochemicals भी आएगा, wood pulp भी आएगा. Okay, you can add यहाँ पे water भी. You know that we have seen that कहाँ पे wood pulp, petrochemicals and water की treatment होती है. कौन से वाले एग्जाम्पल में बेटा? वुड पल्प किस में देखा हमने? रेयन में. नायलॉन में कैसे होता है? Coal, water or air. करेक्ट, कोल, वाटर और एयर. फाइन. सो हियर वी कैन सी सिंथेटिक फाइबर्स मेंशन है यहाँ पे. सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल. तो ये सारे रॉ मटेरियल्स आप यहाँ पे लिख सकते हो. कोल, यू कैन राइट डाउन वुड पल्प, राइट, एंड पेट्रोकेमिकल्स. पेट्रोकेमिकल्स नहीं, आपका कोल आ जाएगा, सो डोंट वरी. Like synthetic fibers, plastic is also a, like synthetic fibers, plastic is also Artificial. Man-made. or man-made. Can we say that? Yes, ma'am. Yes, beta. Ma'am, polymer. Yes, beta. You are not audible. Please increase your voice. Ma'am, can the answer be polymer? Yes, polymer is also one of the common thing is that we have seen polymer यानी क्या? Poly means more than one. Mer means what? Unit. More than one units will form your fiber and plastic. तो दोनों में ये similarity है, right? दूसरी similarity क्या है? That those are the examples of Man-made. right, man-made, right? Now give the example which indicate that nylon fibers are very strong. अच्छा, यहाँ पे ये आपने डिस्कशन किया था, राइट? अगर हम उसको पैराशूट में यूज कर रहे हैं, हम माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए यूज कर रहे हैं, टेंट के लिए यूज कर रहे हैं, सो इट शुड बी दैट मच स्ट्रॉन्गर, राइट? तभी हम उसको पैराशूट के लिए यूज कर रहे हैं, राइट? अदरवाइज व्हाट विल हैपन? The person who is hanging with their parachute will not survive. So what are the examples? You have to give that, you have to provide the example, and then you are going to explain why, right? Yes, beta. Okay, ma'am. Okay, so what is that example? Or examples कौन बताएगा? In case of this nylon. Ma'am, toothbrushes, car seat belts, ropes, socks, sleeping bags, curtains. Perfect. So you will see that कि अब rayon याद रह गया, rayon for silk. Okay, nylon it means, what does it mean? Nylon means stronger one, है ना? पैरासूट से नायलॉन याद रखो. नायलॉन थ्रेड आपके शूज की नायलॉन थ्रेड होती है, राइट? यू आर वेयरिंग योर स्पोर्ट शूज, सो यू विल सी कि नायलॉन की थ्रेड होती है, राइट? नायलॉन थ्रेड से क्या याद रह जाएगा? Ma'am, पैरासूट वाला एग्जांपल, राइट? स्ट्रॉन्गर वन. आफ्टर दैट एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड. क्यों प्लास्टिक कंटेनर्स ज्यादा यूज होते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड? बहुत ही easy. because they are non-reactive. Correct, very good. Plastic is non-reactive, but then what else? What could be the reason? Ma'am, it is lighter than metals and ma'am, it is lighter than metals. Perfect. Perfect. So easy to carry, है ना? So Comfortable. lightweight. Easily use कर सकते हो. Lightweight, right? But what else? सबसे ज्यादा प्लास्टिक क्यों जाता है? जैसे Lower price. correct. Yes, beta. Ma'am, it is cheaper than metals and Very durable. Yes. Durable. Cheaper, Ma'am, easy to handle. Strong. strong. Reusable. करेक्ट, रीयूजेबल. ड्यूरेबल के अंदर स्ट्रॉन्गनेस आ जाएगी. एक और चीज है, बहुत सारी वेराइटीज ऑफ Elasticity. राइट? परफेक्ट, परफेक्ट.
जैसे एंड मैम प्लास्टिक में कलर भी मिलता है। वेरी गुड। स्कूल रीओपन होने पर हम क्या करते हैं, नया कंपास बॉक्स, नया लंच बॉक्स, उसमें बहुत सारी वैरायटी मिलती है। इवन तो वी आर ऑलरेडी हैविंग दैट, वी आर गोइंग टू परचेज इट। व्हाई? बिकॉज इट्स जस्ट अट्रैक्टिंग अस, है ना, इतने कलर्स और वैरायटीज अवेलेबल होते हैं, राइट? सो दिस आर द रीजंस। नाउ explain the difference between thermoplastic and thermosetting plastic. Now you know that thermoset means what? Once it will set, it's not going to change, है ना? अगर thermosetting याद रह जाएगा तो thermoplastic आप आराम से लिख सकते हो। Yes ma'am, it's the opposite of the thermosetting plastic. Yes. So in case of thermoplastic, चलो thermoplastic का first point क्या है? Ma'am, that if it is first setted, then it can be again set. Okay. And what about the thermosetting plastic? Ma'am, first it is setted, then it can't be bring in any shape. Okay. Or we can't set it again. Okay. So give me one example for thermosetting and thermoplastic. अच्छा, electrical. Ma'am, that ice cream molds. Ice cream molds. That is the example of? Ma'am, thermoplastic. Thermoplastic. So what are the examples of thermosetting? Ma'am, bakelite and melamine. Melamine and helmet. Very good. Okay. Yes. So bakelite and melamine. कौन सा वाला डिनर सेट बनाएगा और कौन सा वाला किचन वेयर? हमने देखा था दैट किचन वेयर यानी किचन की जितने भी एक्सेसरीज है, राइट? Ma'am, utensils. Utensils, correct. Then what about bakelite? Bakelite से क्या बनेगा? Electrical switches, handles of various utensils. Okay. Handles of various utensils. ये किस में है? bakelite में है या melamine में है? Bakelite. Perfect. And melamine? kitchenware, floor tiles. Kitchenware के अंदर आप ये सारी चीजें लिख सकते हो, right? Okay, very good. But make sure whenever they are going to ask this differences, है ना? Differences कैसे बताओगे? So अगर 2 marks का है, at least 2 points should be there. And always whenever you are identifying the difference, कहाँ से start करोगे कि thermosetting क्या है and thermoplastic क्या, right? Then you are going to write down the examples and बाकी के characteristics आप बाद में लिख सकते हो. Now second one is explain why the following are made up of thermosetting plastics. Saucepan handles, वो thermosetting plastic से क्यों बने? Ma'am, because it is a bad conductor of heat and light. Bad conductor of heat and light. Okay. Light. यहाँ पे light की जरूरत पड़ेगी या सिर्फ heat की जरूरत पड़ेगी? Ma'am, only. Just because your pan is made up of metal, okay? Metal can easily pass on that heat, है ना? Because वो अच्छा खासा conductor है, right? To stop that conductivity, we are having one poor conductor or insulator. तो saucepan का handle किसकी तरह काम करेगा? That is your insulator, right? And thermosetting plastic. Thermosetting यानी क्या? Once it will set, we cannot mold it into other parts, right? Second, electric plugs, switches, plug boards. And because it is poor conductor of heat and electricity. Okay, and that's why we are using it for electrical accessories. Appliances. But thermosetting plastic यानी क्या? Once it will set, it's not going to change at all, right? Correct. After that, categorize the material of the following product into whether it can be recycled or cannot be recycled. Okay, इसमें से कौन सा recycle हो सकता है और कौन सा नहीं? First, we are having telephone instrument. Recycle हो सकता है या नहीं? Cannot Basis be. of what? No, ma'am. Why? It cannot be recycled. Why? Why telephone instruments cannot be recycled? It's made up of what? Ma'am, thermosetting plastic. Okay, thermosetting plastic. It's made up of thermosetting plastic or thermoplastic? Yes, it's made up of thermosetting plastic or thermoplastic? Ma'am, thermosetting plastic. Because what was the example? कौन सी चीजें कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड स्विचेस एंड ऑल किससे बने हैं? थर्मोसेटिंग से या थर्मल प्लास्टिक से? बेटा, यू आर हैविंग योर टेक्स्ट बुक, राइट?
तो चेक करो हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल है। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स यानी बेकेलाइट और मेलेमाइन, या फिर what was the second example? Okay, can you see it here? We are having two examples, right? We are having two examples. So easily heat होने पर deform कर जाएगी. Deform यानी जिसका shape change हो जाएगा, deformation. Okay, पूरा का पूरा melt हो जाएगा. ये वाली चीज हम कहाँ पे use करेंगे? Deformation हो जाएगा वो. We are having two examples. हमने दो examples study किए थे, polythene and PVC, polyvinyl chloride. अब आपका टेलीफोन किससे बना होगा? What do you think? Second example यहाँ पर है. What is that? That once you will mold it in one shape, you can once again soften it or not. Yes. You cannot. So once it is set, your thermosetting. And what are the examples? Bakelite and melamine. Melamine is a versatile material, यानी it can resist fire. अगर वो यहाँ पे fire resist कर पा रहा है and it can tolerate the heat better than the other plastic, तो वो कहाँ पे यूज हो सकता है? कहाँ पे यूज होगा वो? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में होगा, क्योंकि अगर गलती से भी वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया तो क्या होगा? पूरा घर शॉर्ट सर्किट से, you know the result, right? So it should not happen. It is used for making floor tiles. Why it's important? हाईलाइट क्यों करवाया था बेटा ये सारी चीजें? किचन वेयर एंड फैब्रिक्स मेलेमाइन से बने. Why? ये सारी चीजें उससे बन सकती है. That's why it's known as versatile. Versatile सिंगर सुना होगा आपने. Versatile सिंगर यानी जो सब गा सकते हैं, हर टाइप का नोट निकाल सकते हैं, राइट? वैसे ही versatile, मेलेमाइन को क्यों versatile बोला जाता है? Because it can tolerate the heat, fire, right? And we can use it for the electrical appliances as well as kitchenware, fabric and floor tiles. What about the bakelite? It's a poor conductor of heat. अच्छे से heat को pass नहीं करेगा. Means what? Electricity and heat दोनों. अगर वो एक insulator है तो वो कहाँ पे use होगा? Switches, handles and various utensils, है ना? To prevent that heat and electricity. दो चीजें हो गई. अब टेलीफोन कौन सी कैटेगरी में आता है? टेलीफोन एक अच्छे, यस ऑल ऑफ यू आर देयर. यस मैम. यस बेटा, तो टेलीफोन कौन सी कैटेगरी में आता है अभी? These are the examples of thermosetting plastic, bakelite and melamine, and this one is the example of thermoplastic. Ma'am, it will be in thermosetting plastics. Thermosetting plastic, why beta? Why thermosetting? And if it's thermo, then why thermo? Yes, anyone? Ma'am, thermosetting because I think it cannot be molded again. Okay, it cannot be molded again. Fine. Anyone else, beta? No one? Yes, that is correct answer, Pampi. Thermosetting plastic. And it's not there in your textbook, but हमें logic कौन से apply करना है यहाँ पे? ये वाला. हमने properties देखी ना thermosetting की और thermoplastic की. Fine. Second example. What is second example? Can you see it here? यहाँ पे आपको अच्छी सी images देके रखी है, ये वाली. Fine. अब second example क्या है? प्लास्टिक टॉयज. प्लास्टिक के टॉयज. प्लास्टिक के टॉयज किससे बने हो सकते हैं? मैम थर्मोप्लास्टिक. थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग? थर्मो. Ma'am, thermoplastic. Why thermo? Ma'am, it can be molded. Perfect. Cooker handles? Ma'am, thermosetting. थर्मोसेटिंग. बहुत ही easily mentioned है, right? Yes. Carry bags यानी हमारी polythene bags. वो कौन सा example है? Ma'am, थर्मो. Polythene. Perfect. Polythene. Polythene में PVC डालती. Examples of thermoplastic. Ball point pens यानी हम जो 2 रुपए वाली 3 रुपए वाली यूज करते हैं ना, यूज एंड थ्रो, वो कौन सा एग्जाम्पल है?
Thermosetting or Thermosetting. thermosetting. Why thermosetting? Ma'am, because it can be recycled. It can be recycled, तो वो किस में होना चाहिए बेटा? थर्मोसेटिंग में होना चाहिए या Thermoplastic. थर्मोप्लास्टिक में होना चाहिए? आपका आंसर सही है, बट आपने जो चूज किया वो क्या है? थर्मोसेटिंग. वाई एंड थर्मो वाई? इट कैन नॉट बी रिसाइकल. बॉल पॉइंट पेन्स जो होते हैं इट कैन नॉट बी रिसाइकल इजीली, सो इट शुड बी इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. Thermosetting plastic. नेक्स्ट वन, प्लास्टिक के बॉल्स. ये तो क्लियरली मेंशन है किचन एक्सेसरीज, तो वो किस में जाएगी? किचन वेयर में. Yes, ma'am. It is the thermosetting plastic. परफेक्ट. थर्मोसेटिंग. प्लास्टिक कवरिंग और इलेक्ट्रिकल वायर्स, ये भी यहाँ पे क्या होना चाहिए? इंसुलेटर होना चाहिए, है ना? तो वो कौन होगा? Thermoplastic. थर्मोप्लास्टिक. प्लास्टिक चेयर्स, ये कैसे होने चाहिए? रिसाइकल्ड होने चाहिए, तो वो कौन सा होगा? थर्मो, जो फिर से मोल्ड हो सके, राइट? एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ये क्लियरली मेंशन है. Ma'am, it cannot be recycled because it is made of thermosetting plastic. What about electrical? Yes, beta. Your answer was about what? Plastic chairs or electrical switches? Ma'am, electrical switches. Perfect. Okay. Rana wants to buy shirts for summer. Should he buy cotton shirt or shirt made from the synthetic material? Okay. Advise him. Give your reason why. ये बहुत ही easy example है. Fine. If you are in 7th standard, I think 5th 6th में आपने आराम से पढ़ा होगा कि हम cotton wears क्यों पहनते हैं, और अगर नहीं भी पढ़ा तो it's a that common things, common sense that we are having, है ना? ये एकदम ही common sense वाला question है. कौन बताएगा? Ma'am, may I? Yes, बेटा. Yes. Ma'am, Rana should buy cotton shirts rather than synthetic material, cause synthetic material don't absorb the heat of body. And राइट. अच्छा, अब हम दो चीजें लेते हैं. एग्जाम्पल. फाइन. अगर आप स्विमिंग करते हो या फिर आपके जो फ्लोरेसेंट स्पोर्ट्स वेयर होते हैं, राइट? अभी फ्लोरेसेंट बहुत डिमांड में है, राइट? सो यू विल सी दोनों मटेरियल को आपने कभी टच करके देखा है? आपने सिंथेटिक फाइबर तो पढ़ लिया, बट आपने ये कोशिश की घर पे दैट यू आर गोइंग टू चेक ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक अवेलेबल एट योर होम. मम्मी की साड़ी एक बार उसको टच करके और लाइट के सामने रख के देखो. आपका जो हैंकरचीफ है बॉयज स्पेसिफिकली, उसको देखो टच करके. यू विल सी योर स्विमिंग का जो ड्रेस है, कॉस्ट्यूम है पूरा, वो देखो. फाइन. ये सब मटेरियल्स में आपको अलग अलग फिल टच मिलेगी. व्हाई? if you are going to wear that polyester right now, no, what will happen? It's not going to absorb your sweat. First point. Okay, पंक्ति. सेकेंड थिंग, अगर वो कॉटन से बना है तो कॉटन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द कॉटन विल एब्जॉर्ब दैट स्वेट नेचुरली, बिकॉज दोज आर द नेचुरल फाइबर्स. वो नेचुरली आपका स्वेट एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना? अगर वो स्वेट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? यू विल फील दैट इरिटेशन. अगर पॉलिएस्टर का गलती से पहन लेते हो या फिर मिक्सचर ऑफ फाइबर्स आप पहन लेते हो तो, राइट? सेकेंड थिंग, कॉटन के फाइबर से अगर आपका कपड़ा बना है, देन व्हाट विल हैपन? इट्स गोइंग टू अलाउ द वेंटिलेशन. इट विल एक्ट एज अ वेंटिलेशन, यानी जो भी बाहर से एयर पास होगी दैट विल पास थरोली थ्रू दैट फैब्रिक, है ना? सो यू विल फील बेटर, यानी ब्रीदेबल होगा. ये यूजिंग दैट वर्ड ब्रीदेबल कॉटन और ब्रीदेबल मटेरियल, राइट? अगर आपने पॉलिएस्टर पहना है तो ये केस नहीं होगा. इट्स नॉट गोइंग टू डू दैट, राइट? So summer season में one more thing is that we are not going to wear black clothes because you know that कि black color की characteristic क्या है? It's going to absorb more heat, है ना? अब already बाहर 43 डिग्री 44 डिग्री सेल्सियस है, और अगर वो ज्यादा absorb करेगा so it will become irresistible, है ना? बहुत ही ज्यादा गर्मी लगेगी. So what we are wearing? We are wearing white clothes. अरेबियन कंट्रीज में आपने देखा होगा कि वो एक स्पेसिफिक पूरा ऊपर से हेड से लेके नीचे तक एक पूरा स्पेसिफिक व्हाइट गाउन पहनते हैं, राइट? बहुत सारे अरेबियन वगैरह में देखा होगा. तो आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए दैट व्हाई दे आर वेयरिंग ओनली व्हाइट. ओके, जस्ट बिकॉज दे आर लिविंग इन डेजर्ट एरिया. तो डेजर्ट में ऑलरेडी 1 या 2 दिन गलती से वहां पे बारिश होती है. ओके, ठंड होती है बट स्टिल वहां पे सनलाइट बहुत तेज होती है, राइट? इन दैट केस व्हाट विल हैपन? व्हाइट की नेचुरल प्रॉपर्टी ये है that it's going to reflect that sunlight back. वो absorb नहीं करेगा. Suppose ये surface पर अगर sunlight गिरेगी, it's going to reflect it back.
वो पूरा अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं होगा, राइट। बट ब्लैक क्या करेगा, अगर वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इट विल गेट एब्जॉर्ब बाय द सरफेस, है ना, एंड हीट इंक्रीज होगी। सो व्हाइट का काम क्या है, इट्स गोइंग टू रिफ्लेक्ट इट बैक। मैम डार्क कलर ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, डार्क कलर। करेक्ट, वेरी गुड, फाइन। So that's why our water tanks are painted with red not red color, white color. Okay, white color क्यों होते हैं, ताकि वो जल्दी से गर्म ना। Fine. So in summer season, what is the answer? It should be white, and second thing, it should be breathable material. Breathable यानी कैसा होगा, breathable यानी easily जिसमें से air pass हो सके, और दूसरा जो आपका sweating absorb कर ले। Fine, clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now next question is, give the examples of to show that the plastics are non-corrosive in nature. Now what's the meaning of corrosive? ये बेटा मेंशन कर लेना प्लीज, आपके बुक में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज corrosive. Corrosion यानी डिग्रेड होना स्टार्ट होना, डिग्रेड यानी खत्म होना स्टार्ट होना, ओके। डिग्रेडेशन, यू नो द वर्ड डीकेइंग, डीके यानी सड़ना, एक बार सड़ने के बाद वो खाना धीरे धीरे कहाँ पे मिक्स हो जाएगा, सॉइल के साथ। वैसे ही corrosion means what? डिग्रेडेशन, ओके। आपने देखा होगा कि घर के बाहर जो पेंट होता है वो बहुत जल्दी फेड हो जाता है ना। फेडिंग ऑफ दैट पेंट विल बी फास्टर देन द पेंटिंग इनसाइड द होम, क्योंकि बाहर हम एक्सट्रीम सीजन को फेस नहीं, एक्सट्रीम सीजन को फेस करते हैं और अंदर की साइड पे तीनों सीजन फेस नहीं करें, राइट। तो व्हाट इज द डिग्रेडेशन, यानी बाहर का लेयर कोरोड, कोरोशन यानी क्या, व्हाट इज कोरोशन, सिंपली वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। फाइन, तो कोरोशन। अब नॉन कोरोसिव क्यों है प्लास्टिक, Ma'am, because it doesn't absorb in the soil, and even in oceans, it stays for many years. Okay, corrosive. Give the examples to show that plastics are non-corrosive. यानी हमें ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो ये दर्शा सके कि अगर प्लास्टिक के ऊपर कोई इफेक्ट होगी भी तो उसके ऊपर कोई, पहले तो इफेक्ट होगी या नहीं होगी, नहीं होगी मैम। नहीं होगी। तो उसका मतलब क्या हो गया, अगर इफेक्ट ही नहीं हो रही तो डिग्रेडेशन ही नहीं होगा, है ना। जैसे कि अगर आपका वाटरप्रूफ बैग है, फाइन, तो यू विल सी कि अगर वो वाटरप्रूफ है, उसके ऊपर पानी ही नहीं लग रहा, तो वो खराब होने के चांसेस कितने कम है, बहुत ही ज्यादा कम, है ना, नेग्लिजिबल अमाउंट में है। यस, आया ना बेटा। यस मैम। मैम तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ऐसे प्लास्टिक्स के एग्जांपल दो जो नॉन कोरोसिव, नॉन कोरोसिव यानी जिसके ऊपर इफेक्ट नहीं हो रही है, राइट। चलो कौन कौन से एग्जांपल्स है, प्लास्टिक के हमने 4 ही एग्जांपल देखे हैं, पीवीसी एंड पॉलीथीन, और थर्मोसेटिंग के कौन से 2 देखे, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो चारों की चारों कैसे है, चारों की चारों नॉन कोरोसिव है, यानी उसके ऊपर इफेक्ट तो कम ही होगी। अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा तो इट मे बी पॉसिबल दैट इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, ओके। बट जनरली फॉर द एग्जांपल्स, 4 of them we can say that non corrosive in nature, okay. Yes beta, someone has asked me that N95 में कौन सा मटेरियल होता है, वेरी गुड क्वेश्चन, ओके। हु इज दिस, देवम, देवम कहाँ पर है बेटा, आई कैन सी यू देवम। अब N95 मास्क जो है उसकी स्पेशलिटी किसमें है पता है, N95 स्पेशलिटी उसके मटेरियल से ज्यादा उसके पोर साइज में। मिस आई विल शो यू हियर, देवम प्लीज कीप योर वीडियो ऑन बेटा, आई कैन सी यू, ओके। आई विल शो यू, मैंने आपको एक मैश दिखाया था, राइट, एक जाली जैसे स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दैट, है ना, कुछ ऐसा दिखाया था। सपोज ये आपका हैंकरचीफ है, फाइन, एंड वी आर हैविंग वन मैश लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे बहुत सारे फाइबर्स हो गए और वो एक मैश बनाएंगे, मैश यानी जाला, राइट, बहुत सारे फाइबर्स मिलके एक मैश बनाएंगे। अब जैसे कि ये क्रिस्क्रॉस फॉर्म में है, क्रिस यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के बीच में ये पोर्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, पोर्स यानी होल, है ना, बीच में होल्स हो गए, बट वो बहुत ही छोटे हो गए, फाइन। अब ये हो गया आपका कॉटन का हैंकरचीफ, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ बॉयज, right. Now we will take one example of jute bag,
अगर आपने जूट बैग देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो जूट होता है वहां पे ये फाइबर्स के बीच में बहुत ही ज्यादा गैप होती है, हाँ या ना? जूट बैग का जो फाइबर होता है उसके बीच में बहुत ही बड़ी जगह होती है, यानी इसके बीच के जो हॉल्स है वो बहुत ही बड़े हो गए। इतना ऑब्जर्व किया है बेटा? मैम वो हम इजीली देख सकते हैं। इजीली देख सकते हैं, यानी इसके बीच की जो पोर साइज है वो ज्यादा बड़ी है। अब ये कुछ ऐसा है, सपोज इफ विल टेक एग्जांपल ऑफ नाउ, ये दोनों साइड पे रखो, ये हमारा हो गया हैंकरचिप और ये हमारा हो गया जूट बैग, राइट? ये जूट बैग। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे, व्हाट इज दैट? पिजियन पी नेट। अगर आप फ्लैट में रहते हो तो यू नो दैट यू आर हैविंग की जो पिजियन की नेट होती है वो बड़े बड़े बॉक्सेस में होगी, है ना, कुछ इतने बड़े। इसमें से पिजियन तो पास नहीं हो सकता बट मस्क्यूटो पास हो सकते हैं, हाँ या ना? राइट? ये हो गई पिजियन वाली नेट। बट जो मस्क्यूटो नेट होती है जो आपके, जिससे आपके विंडोज एंड डोर्स बने हैं, राइट, यू विल सी कि वो बहुत ही पतले फाइबर्स होते हैं, यानी इसके बीच में बहुत ही कम गैप होती है, बिकॉज यू नो दैट मस्क्यूटो कैन इजीली पास थ्रू इट, राइट? ये हो गई आपकी मस्क्यूटो नेट। अब इन चारों के बीच में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है कि है तो बने ये फाइबर सेम, एंड दोज आर द सिंथेटिक फाइबर्स। ये चारों की चारों जो भी एग्जांपल है एक्सेप्ट दिस जूट, या फिर अगर ये कॉटन का बना है तो हैंकरचिप, तो ये सिंथेटिक फाइबर हो गए और ये नेचुरल। अब ये चारों के बीच में डिफरेंस क्या है? ये फाइबर्स के बीच की गैप, ओके? अब ये N95 मास्क जो होता है उसमें क्या होता है कि कोरोना वायरस का एक स्पेसिफिक शेप एंड साइज होगा, वी कैन नॉट सी इट विद आवर नेकेड आईज, राइट, बट वी कैन सी दैट अंडर माइक्रोस्कोप एटलीस्ट। वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, राइट? तो हम देख सकते हैं। सो अगर उसकी साइज सपोज समझ लो कि ओके, यू नो दैट व्हाट इज माइक्रोमीटर, माइक्रोन, माइक्रोन यानी ऐसी चीज जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक हो, हम सीधा अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप चाहिए हो, ठीक है? ऐसी कोई भी ऑर्गेनिजम्स को मेजर करने के लिए वी विल रिक्वायर्ड माइक्रोन यूनिट। अगर मैं बोलूँ कि लिक्विड मेजर करना है तो आप बोलोगे लीटर, है ना, या फिर ml में मेजर करेंगे। अगर मैं बोलूँ कि ग्रोसरी का सामान करना है तो किलोग्राम ग्राम्स में करोगे। वैसे ही अगर मुझे किसी ऑर्गेनिज्म को मेजर करना है धार्मिक, तो हम किस में मेजर करेंगे? माइक्रोन, ठीक है, या फिर माइक्रोन मीटर। Now what is that micron? I think you might have heard that word in math, right? Math में सुना होगा। So micron is something like this. ये हो गया माइक्रोन का साइन, फाइन, या फिर ये हो गया माइक्रोन मीटर, माइक्रो एम। तो ये अगर साइज लेस देन 95 है, समझ लो कि कोरोना की जो साइज है वो इससे कम है, तो अगर आप ऐसा मास्क या उसके बीच की जाली बनाते हो, फाइन, जो कितनी होनी चाहिए? कोरोना की साइज से कम होनी चाहिए, तो वो कोरोना बाहर ही फिल्टर हो जाएगा, है ना? सपोज ये हमारा फिल्टर है और हमारे पास टी है, सिंपल एग्जांपल, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू फिल्टर योर टी, तो हम क्या करते हैं कि हम एक सीव यूज करते हैं, फाइन। ये सीव अगर, अच्छा चलो हम हॉरिजॉन्टली लेते हैं, सपोज ये हमारी सीव है, तो यू विल सी कि जो चाय आप यहाँ से पास करोगे यहाँ पे टी पार्टिकल्स रह जाएंगे, है ना, और आपकी चाय आगे बढ़ जाएगी आपके मग के अंदर, राइट? बिकॉज टी पार्टिकल्स ये सीव से छोटे हैं तो वो यहीं पे रह जाएंगे। कैन यू कंपेयर नाउ this with our N95 mask? ये अगर हम Ma'am, the tea particles are bigger than the holes. हाँ मैम, बिगर होते तो बिगर डर्टी होल ही बोला ना बेटा मैंने। और सीव का नहीं मैम, आपने बोला कि उसका साइज स्मॉलर होता है। स्मॉलर साइज ऑफ सीव, आपका जो सीव है, छन्नी है, उसका स्मॉल साइज होगा, इसलिए टी पार्टिकल्स यहाँ पे बैठ जाएगा। अगर मैंने ऐसा बोला है तो दैट इज माय मिस्टेक, आई एम एक्सेप्टिंग, ओके फाइन, दैट इज माय मिस्टेक। बट द थिंग इज दैट कि आपकी जो छन्नी होगी वो कैसी होनी चाहिए? उसका पोर साइज यानी इसके बीच में जो गैप है इट शुड बी स्मॉल, तभी आपका जो बड़ा टी पार्टिकल है वो वहीं पर अटक जाएगा, है ना? इट्स लाइक दैट, फाइन। और वैसे ही क्या होगा, कोरोना का N95 मास्क है, उसकी जाली, उसके बीच के पोर साइज कैसे हो गए? छोटे हो गए या बड़े हो गए? छोटे हो गए। किससे छोटे हो गए? किसके पार्टिकल साइज से छोटे हो गए? कोरोना की साइज से। इसलिए हमें क्या बोला जा रहा है अभी? वी नीड टू वेयर 2 मास्क। अगर गलती से आपने फैब्रिक का मास्क पहन लिया है क्योंकि आप 2-3 N95 वॉश में चले गए, राइट, अगर गलती से आपने फैब्रिक का मास्क पहना है और उसके भी ऊपर दूसरा धार्मिक
make sure whenever you are sitting for the class, any of the session, you are going to sit in the quiet room, okay, where no one is going to interrupt you. Fine. Next time I'm directly going to complain about this. Okay, I'm not going to wait for anything, है ना? You'll be out in waiting room, beta. Fine. If you want to talk with someone, if you want to discuss someone, discuss something with, then you can just directly discuss with, है ना? जो भी यहाँ पे रहेगा 100% अटेंड हो, बात करनी है कंप्लीटली वहां पे फिनिश करके फिर यहाँ पे आओ. 100% या तो बात करो या फिर यहाँ पे बैठो. ओके, इज दैट क्लियर धार्मिक? ओके, तो आप मुझे धार्मिक बताओ N95 मास्क क्यों स्पेसिफिकली N95 ही यूज करते हैं, हम फैब्रिक वाले की यूज नहीं कर रहे, नॉर्मल जो हम घर पे भी सिल सकते हैं. धार्मिक, That's why we are wearing 2 masks. अगर एक मास्क से गलती से वो पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं, and that's what they are suggesting us. जैसे ही आप घर आओ, मास्क निकाल के उसको टच मत करो, सीधा उसको किसके अंदर जाने दो, डिटर्जेंट. डिटर्जेंट की एक अलग स्टोरी है. फाइन, दैट व्हाई वी आर यूजिंग डिटर्जेंट एंड डेटोल. ओके, क्योंकि वो कुछ ऐसा करते हैं. ओके, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. हम वायरस वाले चैप्टर में हम वो स्टडी करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड कोई, ये हमने स्टडी किया है ना? Yes, ma'am. किया है, राइट? सो इट्स दैट, सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट. I'll show you exactly what I'm trying to say. वायरस का जो स्ट्रक्चर है, it's something like this. This is your virus, round shape. Fine. Now there you will find out कि उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं. रिसेप्टर्स यानी ये कुछ ऐसा है जैसे हमारे टेरेस के ऊपर एंटेना डिश होती है, राइट? ऐसे ही रिसेप्टर्स, उसको रिसेप्टर बोला जाता है. ये जो रिसेप्टर्स है, दिस आर द कीज. समझ लो कि ये कीज है किसी लॉक की. अब लॉक कौन है? लॉक कौन सा है? हमारा सेल, यानी Yes, ma'am. वो जाके अटैक करने वाला है, राइट? जो हमारा नॉर्मल सेल है, अगर आपने सेल स्ट्रक्चर स्टडी किया है तो आपको पता होगा. अब ये सेल है, ये लॉक है उनके लिए और ये इनकी चाबी है. इफ दे वांट टू एंटर इनसाइड अवर सेल, ये कुछ ऐसा है कि किसी किले पे कोई दूसरा राजा अटैक कर रहा है, राइट? तो ये जो फाइटिंग होती है वो सेल टू सेल होती है ना? हम बोलते हैं ह्यूमन बॉडी में, होल ह्यूमन बॉडी में, बस स्पेसिफिकली ये रेस्पिरेटरी सेल के साथ फाइटिंग होती है, या फिर जहां से भी वो इन्वेड करे हैं वहां से. इन्वेड यानी अटैक जहां से भी किया है वहां से. अभी वो डिस्कस नहीं करेंगे. बट अब समझ लो कि ये चाबी हम उसको तोड़ दे तो दे आर नॉट एबल टू एंटर इनसाइड अवर सेल. तो ये चाबी तोड़ने का काम कौन करता है? डिटर्जेंट या फिर डेटोल. ये डिटर्जेंट यहाँ से कट आउट हो जाएगा. ओके, ये रिसेप्टर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये सारे जब आप हैंड वॉश करते हो डेटोल, डिटर्जेंट, सोप से, ओके, तब वो वॉश होके उसी पानी के साथ बह जाएंगे. अब ये कोरोना अगर आता भी है बॉडी में, अगर उसी हाथ से आपने खाना खाया और वो अंदर जाता भी है, या आपने नोज टच किया, आईज टच की, तो दे आर नॉट एबल टू अटैक ऑन द सेल्स. फाइन, इतनी स्ट्रेटेजी समझ में आ सकती है. डिटेल में शायद समझ में ना आए, बट व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग व्हाइल वी आर यूजिंग दैट डेटॉल, डिटर्जेंट और सोप. ओके, जैसे अगर सोप के अंदर एक कैपेसिटी है टू रिमूव द डर्ट, तो वो भी कुछ ऐसा ही प्रिंसिपल है. बट राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट. बट I think now you will understand that why they are giving that pressure on that word. Wash your hands properly all the time. That is important. Mask पहन लिया और ये कर लिया at least, so we can avoid that situation. Fine. Okay. Now we'll come back to our point. Yes, beta. Yes, Jay. Is it clear, Deva? Still, I'm not able to see you, beta. आपने question पूछा था, but I'm not able to see you कि मुझे किसने question पूछा था. Okay, we'll take next question. Should the handle and bristles of a toothbrush be made of the same material? Explain your answer. Bristles यानी जहां से हम अपने teeth clean करते हैं, and handle यानी जहां पे हम उसको पकड़ के रखते हैं, right? It should be of a same material or different material. No, ma'am. पहले तो टूथब्रश किससे बने हैं? Ma'am, different. Different. Yes, very good. अब different यानी कौन सा मटेरियल बेटा? मीट, राइट? Yes, ma'am. यस बेटा. डिफरेंट यानी कौन कौन सा अलग अलग मटेरियल होगा?
मैम आई थिंक सो एक थर्मोस्टैटिंग और एक थर्मोप्लास्टिक. ओके, थर्मोसेटिंग एंड हैंडल थर्मोस्टैटिंग और वो जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक. ब्रिस्टल थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग कौन से? मैम द हैंडल. हैंडल. ओके, इजी करेक्ट. Ma'am, bristles are made of nylon. करेक्ट. ओके, व्हाई नायलॉन बेटा? नायलॉन. मैम बिकॉज इट कैन बी इजीली मूवेबल. ओके, ग्रेट. एंड इट्स स्ट्रॉन्ग. एंड इट्स स्ट्रॉन्ग. अगर नायलॉन स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने टीथ के साथ बाहर नहीं आएगी बेटा. अगर वो इतने स्ट्रॉन्ग है तो वो हैंडल भी यूज होगा या ब्रिस्टल्स भी यूज होगा? मैम दे आर इलास्टिक. They are elastic. Which one is elastic? Which one is elastic? मैम ब्रिस्टल्स. Bristles. तो कौन सा प्लास्टिक होना चाहिए? Ma'am, nylon. Nylon. But why बेटा? Your answer is correct. But why nylon? मैम बिकॉज इट इज Toothbrush handles वाला एग्जांपल हमने कहाँ पे देखा? मैम इट इज सॉफ्ट एंड मैम इट इज सॉफ्ट एंड इजीली मूवेबल. See, characteristics we are not discussing. We are discussing what? It's made up of what? आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक है, कहाँ पे ये लिखा है कि टूथब्रश हैंडल्स. अच्छा, आपकी अगर ओपन बुक्स एग्जाम ली जाए, है ना, क्वेश्चन के आंसर्स इट्स ऑलरेडी देयर इन योर टेक्स्ट बुक, है ना, यू हैव टू फाइंड इट आउट. तो ये एग्जाम में व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन? We will require time. You will require time. Completely fine. I am giving you that time. Find it out. कहाँ पे टूथब्रश हैंडल्स मेंशन है? It's there in your synthetic fiber or it's there in your plastic? Find it out. Come on. पंक्ति और बेटा, I think पंक्ति give me that answer, no? नायलॉन से ब्रिस्टल्स बने हैं. पंक्ति और yes, that is correct. Now what about the handles? स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल प्लास्टिक कौन सा था? मैम प्लास्टिक की बात हो रही है तो कौन सा आना चाहिए बेटा? मैम उसमें था मैम पॉलिस्टर. पॉलिएस्टर. नो. मैम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. व्हाई थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? मैम क्योंकि वो ड्यूरेबल है और स्ट्रॉन्ग. ओके, अब आप समझ में आया व्हाई नायलॉन, है ना. नायलॉन क्यों? ब्रिस्टल्स है. हम एक ड्यूरेबल प्लास्टिक से अपने टीथ, क्योंकि वो कैसा होना चाहिए? मूवेबल होना चाहिए. अगर वो मूव नहीं करेगा तो अपने टीथ के साथ बाहर आएगा. नायलॉन इज करेक्ट आंसर. एंड सेकंड इज व्हाट? थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक. ड्यूरेबल कौन सा है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हमने कहाँ से पढ़ा? कौन से वाले में ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी बेटा? थर्मोसेटिंग. थर्मोसेटिंग. ओके, चलो भाई एंटर हो जाओ. हो गई मैं तो. now next question, the last question is what? Please read the question for me. Please read the question for me. Ma'am, 12th question. Yes, last question. Avoid plastic as far as possible. Comment on this advice. Yes, please come on, Pankti. Please read it once again. No, beta, I'm not able to listen. Okay. Avoid plastics as far as possible. Comment on this. Okay. So how we can do that? How we can avoid that? We can replace so many products with the help of. केक आता है उसके ऊपर हार्ट बना देते हैं चॉकलेट का, फिर हैमर से तोड़ने का, कट नहीं करने का, हैमर से तोड़ने का. मैम को ऐसा केक चाहिए, वो कितना महंगा आता है, 500 ग्राम आता है 800 रुपए का, और इतना केक आता है अंदर, सिर्फ वो बड़ा बार बना देते हैं.
और वो तो Excuse me, ma'am. अकेला चॉकलेट थोड़ी कोई खाता है। मैं उसको समझा है कि और कुछ हाँ। Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, you're there. Yes. Ma'am, actually, your voice is audible in between. I think you are discussing about cake, so we are able to hear you. And should I leave? Yes, ma'am. Okay, fine, ma'am. Okay, beta, we'll continue next session. Okay, we are going to start with the new chapter sound and make sure. Yes, beta, you can, Jai, for water you can. Okay, make sure you are complete the exercise. Fine.